Bismillahirrahmanirrahim. Today I am going to conduct a third lecture related to the root locus concept. इस लेक्चर में मैं जो रूट लोकस को प्लॉट करने के लिए हमें कुछ बेसिक स्टेप्स जो है उनका पता होना चाहिए, उनको एक एग्जांपल की हेल्प से मैं एक्सप्लेन करूंगा एंड देन आई विल प्लॉट द रूट लोकस ऑफ दैट एग्जांपल. So let's start. First of all, we have to know what is root locus. पिछले दोनों लेक्चर में मैंने रूट लोकस को डिफाइन कर दिया है, बट टू रिमाइंड all of you again what is the definition of root locus, I have put the definition again in this slide. In control theory and stability theory, root locus analysis is a graphical method for examining how the roots of the system change. How the roots of the system change means how the poles of the system change with variation of a certain parameter commonly known as a gain k within a feedback system. So it means if you have a feedback system and you have a parameter, unknown parameter called as gain, then you can change the value of gain by changing the value of gain, because value of gain is nothing but the value of an amplifier's gain. So in control system, you can design an amplifier of certain gain or different value of gain, and then that gain can be used to give output, to give input to the plant of the control system. So by changing value of gain of an amplifier, we can change the location of the pole, or we can say roots of a control system. So gain is a very important parameter. By changing the root, as you all know, if the roots, magnitude of roots is changed, or nature of roots are changed, is changed, the response of the transient response of the control system can also change. So by changing the gain, you can make your system stable or unstable, or you can check the stability, capacity, or stability range of your control system, because there will be a range of gain k for which the system will be stable, and out of that range the system will be unstable. So that's why root locus is very important to study, because because first we will change the gain k, and then we will plot the root locus to see if the system is stable or it has achieved the required parameter which were given to the designer. So आउटलाइन क्या है हमारी रूट लोकस प्लॉट हम करना सीखेंगे. उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ये सिम्टोट्स क्या होते हैं, उनको उनकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, फिर एंगुलर ऑफ डिपार्चर की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, और उनकी डेफिनेशन क्या होती है, ब्रेक अवे पॉइंट और या ब्रेक इन पॉइंट क्या होता है, उनकी डेफिनेशन हम देखेंगे. और फिर जो है, जो आपका लोकस है वो अगर इमेजिनरी एक्सिस को कट करता है, तो वो जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे वो कट करता है वो भी हमें पता होना चाहिए, तो वो भी हम फाइंड कर लेंगे. लेट्स स्टार्ट. तो दिस इज एन एग्जांपल कि आपके पास ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है. स्टेप 1 क्या है आपके पास, फाइंड द पोजीशन ऑफ पोल जीरोस एंड लोकी. तो हमें पता है कि इसके पोल्स कितने हो जाएंगे. इसकी जीरो तो एक ही है, z-2 यानी s-2 पे एक जीरो हो जाएगी, क्योंकि आपने डिनोमिनेटर को इक्वल टू जीरो करना है, तो s+2 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, जहाँ से s इज इक्वल टू -3 यानी एक ही जीरो है, z1 और -2 पे इक्वल हो जाएगा. फिर नीचे जब आपने पोल फाइंड करने हैं, तो s²+2s+10 है, यहाँ तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला या यूज कर लें या स्क्वायर कंप्लीट कर लें. तो s²+2s10 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें 1 और 9 में, और ये जो है s+1 का स्क्वायर है और 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है. या वैसे ही आप सिंपल लिख सकते हैं कि s+2 इज इक्वल टू -9, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से s+1 इज इक्वल टू +-j√j3 आ जाएगा. यहाँ से s की दो वैल्यू आ जाएगी, -1 +j3 और दूसरी होगी -1 -j3.
तो ये हमारे पास दो पोल्स आ गए हैं, यहाँ पर रूट्स आप कह सकते हैं। these are p1 is equal to -1 plus j3 and p2 is equal to -1 minus j3। अब इनको आप एस प्लेन में प्लॉट कर देंगे, लेकिन उससे पहले हमें पता नहीं कि नंबर ऑफ लोकी कितने हैं, मीन नंबर ऑफ ब्रांचेस जो हैं या लाइन जो रियल एक्सिस सेगमेंट्स हैं रूट लोकस के, वो कितने हो सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल चेक है कि आप देखें कि पोल और जीरो से मैक्सिमम नंबर कौन सा है। तो इस केस में पोल 0 2 थे, 0 1 था, तो नंबर ऑफ लोकी जो है वो 2 होंगे। अब हमने इनको प्लॉट कर दिया, 0 जो है वो -2 पे आपने एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया, और एक क्योंकि ये दोनों जो पोल्स हैं इनका जो रियल कंपोनेंट है वो -1 पे है, तो ये कम्प्लेक्स पोल्स हैं क्योंकि इनमें कम्प्लेक्स नंबर के तौर पे ये रिप्रेजेंटेड है। तो रियल एक्सिस पे जो इनका पार्ट है वो -1 पे होगा, और 3 यूनिट्स गैप होगा, और 3 यूनिट माइनस दूसरा पोल होगा। ये कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर की फॉर्म में हमारे पास ये अवेलेबल है। जीरोस भी कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर की फॉर्म में हो सकती है, बट इस केस में जीरो जो है वो एक रियल नंबर ही है। तो कोई भी जीरो जो है वो भी कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर हो सकते हैं, और जो पोल्स हैं वो भी कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल पेयर में भी हो सकते हैं, या सिंपल रियल एक्सिस पे भी हो सकते हैं। सब सिनेरियो में आपको रूट लोकस की कैलकुलेशन करना आनी चाहिए, जो कि स्टेप्स यही हैं। नेक्स्ट जो है हमने एसिम्पटोट्स को डिफाइन करना है, और इनको देखना है कि इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, और इनको फाइंड कैसे करते हैं मैथमेटिकली। तो डेफिनेशन क्या है एनालिटिकल ज्योमेट्री, एन एसिम्पटोट ऑफ ए कर्व, लेट्स से आपके पास ये कर्व है, तो इसका एसिम्पटोट ये रेड डॉटेड लाइन है। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट इसे कहते हैं, ये वर्टिकल एसिम्पटोट है, ये ऑब्लीक एसिम्पटोट है जो किसी स्लोप के साथ मूव कर रहा होता है। सो एसिम्पटोट क्या है? एसिम्पटोट ऑफ ए कर्व, एसिम्पटोट हमेशा किसी कर्व का होगा, इज ए लाइन सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन द कर्व, ये कर्व और लाइन में जो डिस्टेंस है, ये लाइन इस तरह जा रही है, कर्व और लाइन में डिस्टेंस अप्रोच जीरो, ये यहाँ पे करके जीरो के दोनों में डिस्टेंस कम हो रहा है, एज वन और बोथ ऑफ द एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स टेंड टू इंफिनिटी। सो इस जगह पे जाके अगर आप देख रहे हैं लाइन के जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो अप्रोच टू इंफिनिटी कर रहा है, इस जगह पे इस लाइन का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो अप्रोच टू इंफिनिटी कर रहा है, उस जगह पे इस जगह पे ये जो लाइन है, ये जो कर्व है, इसके दोनों कोऑर्डिनेट जो है वो इंफिनिटी को अप्रोच करते हैं। तो जिस जगह पे कर्व के कोऑर्डिनेट्स इंफिनिटी को अप्रोच करने चाहिए, वहाँ पे एसिम्पटोट और कर्व के बिटवीन डिफरेंस अप्रोचेस टू जीरो होना चाहिए। तो ऐसी लाइन जो इस डेफिनेशन पे पूरा होता है उसे एसिम्पटोट कहते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है आपके पास? आपको पता है कि कंट्रोल सिस्टम है, नंबर ऑफ जीरोस जितनी होती हैं उतने ही नंबर ऑफ पोल्स होने चाहिए, लेकिन समटाइम्स जीरो जो होती है वो इन्फिनिटी भी होती है, या पोल इन्फिनिटी भी हो सकता है। तो जीरोस और पोल हमेशा एक दूसरे को इनक्लोज करते हैं, यानी कन्वर्ज करते हैं, यानी जो आपका रूट लोकस है वो पोल से शुरू होता है, जीरो पे उससे इनक्लोज होना चाहिए। लेकिन अगर वो जीरोस कम है तो जाहिर बात है, अगर जीरो कम है तो जो रूट लोकस है उसका कुछ एक पोर्शन तो उस जीरो की तरफ जाएगा जो प्रेजेंट है, जो आपकी इंफिनिटी पे नहीं है वहाँ चले जाएगा रूट लोकस का कुछ एक जो सेगमेंट होगा। लेकिन बाकी सेगमेंट फिर किस तरफ जाएंगे? एसिम्पटोट्स की तरफ। जो भी आप एसिम्पटोट्स प्लॉट करेंगे, और वहाँ पे जाने का मतलब ये है कि वो इन्फिनिटी पे जो जीरो है उसकी तरफ इंक्लोज हो रहे हैं। The number of lines that will emerge from the pole should enclose to the zeros। पोल से जितनी भी लाइन निकलती हैं रूट लोकस में, वो जीरो की तरफ इन्हें जाना चाहिए। If zeros are less than poles, but if zeros are less than poles, then uh, sorry, then those lines will go toward asymptotes. Then those lines will go toward asymptotes. तो ये एसिम्पटोट्स की सिग्निफिकेंस है कि जितनी एसिम्पटोट्स हो, उसका मतलब ये है कि जो आपका रूट लोकस है
वो उतनी लाइन वो इस एसिम्प्टोट्स की तरफ जो है वो एक्सटेंड होंगी, ठीक है। तो हमें फिर पता होना ये एसिम्प्टोट होते कितने और उनकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, एसिम्प्टोट कहाँ से इमर्ज होंगे, कितने एसिम्प्टोट होंगे, किस पॉइंट से वो एसिम्प्टोट हम ड्रॉ करेंगे, कितने होंगे, वाई एक्सिस के लॉन्ग होंगे, एक्स एक्सिस के लॉन्ग होंगे, तो उन सब की कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। तो वो नेक्स्ट स्लाइड में है। तो नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स कैलकुलेट करनी है, आपके पास फार्मूला है पोल माइनस जीरो, आप कर दें ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का। तो इस केस में, इस एग्जांपल में 2 ओपन लूप पोल थे और 1 जीरो था, तो 1 एसिम्प्टोट इसका एक ही होगा। अब हमें एसिम्प्टोट का सेंट्रॉइड हमें पता नहीं, एसिम्प्टोट कहाँ से इमर्ज होंगे, किस पॉइंट से इमर्ज होंगे, उसे सेंट्रॉइड कहते हैं। उसकी कैलकुलेशन क्या है कि जितने भी पोल्स हैं आपके पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के, उनके रियल पार्ट का सम कर दें और जितने भी जीरोज हैं उनके रियल पार्ट का सम कर दें और डिवाइड कर दें पोल माइनस जीरो से। तो इस केस में आपके पास 2 पोल थे, दोनों का रियल कंपोनेंट -1 था, -1 था तो -2 सम हो जाएगा इसका, और आपके पास जीरो एक ही थी और वो -2 पे थी। तो ये वैल्यू आपने यहाँ पे रख दी, डिवाइड कर दिया p माइनस ई यानी 2 - 1 से, तो सेंटर ऑफ सेंट्रॉइड और एसिम्प्टोट जो है वो रीजन 0 पे आ गया, यानी पाई सी सिग्मा सी आप कह सकते हैं, यानी जहाँ पे ये रियल एक्सिस का रीजन है वहाँ पे सेंट्रॉइड आ गया, यानी एसिम्प्टोट का ओरिजिन पॉइंट वहाँ से आ गया आपके पास, और एसिम्प्टोट है भी एक है। सो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट क्या, भी यहाँ से एसिम्प्टोट ओरिजिन तो होगा, तो क्या वो लेट मी तो क्या वो एसिम्प्टोट जो है वो इस एंगल पे जाएगा यहाँ से, या इस एंगल पे ऐसे आएगा, ठीक है, कहाँ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमने जो है वो एंगल कैलकुलेट करना है, तो उसकी जो हमारे पास ये समझाने के लिए कि एसिम्प्टोट का एंगल क्या होगा, क्या वो इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जाएगा, वर्टिकल एक्सिस के साथ जाएगा, वी डोंट नो। तो एंगल हमने फाइंड करना है, उस एंगल के लिए हमारे पास फार्मूला गया 2k+1/p-e × 180। इस केस में p-e आपको पता है जैसे 1 के इक्वल है, और 2k+1 इसका भी आंसर जो है वो 1 है, तो 1 × 180 = 1। तो हमने जो है वो k को 0 रखना होता है पहले, फिर k को 1 रखना होता है, k को 2 रखना है, तो k को 0 जो है वो हम रखेंगे पहले। तो 1/1 × 180 एसिम्प्टोट का एंगल जो है वो 180 आ गया आपके पास। तो आप इस तरह जो है अपना एसिम्प्टोट, ये देखें डॉटेड लाइन नज़र आ रही है, इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद हाईलाइट कर देता हूँ। ये वो लाइन है एसिम्प्टोट, ऐसे जो है वो along the x एक्सिस एसिम्प्टोट आपके पास आ गई, और एंगल जो है वो 180 पर with respect to positive x एक्सिस। इस तरह जो है वो आपने एसिम्प्टोट का एंगल भी निकाल लिया। फिर आपके पास आएगा कि एंगल ऑफ डिपार्चर एंड एंगल ऑफ अराइवल क्या होता है। सो एंगल ऑफ डिपार्चर वैलिड ओनली फॉर कॉम्प्लेक्स कैंडिडेट पोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समटाइम्स आपके पास प्रॉब्लम ऐसी होती है कि उसके जो पोल्स होते हैं कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर के फॉर्म में होते नहीं है, और आप उस केस में एंगल ऑफ डिपार्चर निकालना जो है वो
मीनिंगलेस है, तो कोई एंगल ऑफ डिपार्चर निकालने की जरूरत नहीं होती। So definition क्या है? The angle of departure is the angle at which the locus leaves a pole in the S plane. So let's we move back. ये आपका जो है वो पोल है, तो ये जो पोल है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ किस एंगल से, सिमिलरली ये पोल जो एंगल ऑफ डिपार्चर होगा, यानी ये पोल जो है लोकस जो यहाँ से बनता है, पोल से जो रूट लोकस निकलेगा वो किस एंगल से जो है वो निकलेगा, तो पार्ट करेगा पोल। ठीक है, तो ये एंगल फाइंड करना जरूरी होता है, लेट्स से तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन है आगे, वो हम देखते हैं कैसे हमने फाइंड करनी है। तो ये जो एंगल ये होगा, लेट्स ये एंगल 260 है, तो ये वाला नीचे वाला नीचे पोल का एंगल -260 होगा। तो आप जस्ट एक कॉन्जुगेट पेयर है ना, तो आप एक का फाइंड कर लें, दूसरे का माइनस आप लगा दें। तो फार्मूला क्या है? 180 माइनस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, समेशन ऑफ एंगल्स फ्रॉम द रिमेनिंग पोल्स। जिस पोल का आप एंगल ऑफ डिपार्चर, यानी जिस पोल से आपने रूट लोकस को डिपार्ट करवाना है, तो वो किसी एंगल पे डिपार्ट करे, उसको छोड़ के बाकी जितने भी पोल्स हैं उनका उनका उस पोल से जिसको आप कंसिडर कर रहे हैं क्या एंगल बनता है। यानी जिस पोल का आपने एंगल ऑफ डिपार्चर फाइंड करना है उसको रेफरेंस बनाएं, उसके लिए एंगल कैलकुलेट ना करें, बल्कि बाकी जितने भी पोल्स हैं उनका एंगल क्या बनता है विद रिस्पेक्ट टू दैट पोल जिसका आप एंगल ऑफ डिपार्चर निकालना चाहते हैं, प्लस समेशन ऑफ एंगल ऑफ फ्रॉम द जीरोस। उसी तरह आपने जो जिस पोल का एंगल ऑफ डिपार्चर निकालना है उसके रेफरेंस से बाकी सारे पोल का एंगल निकाल लें, और फिर उसी तरह जीरोस जो भी हैं रूट लोकस में उनका एंगल भी उसी पोल के रेफरेंस से निकाल लें। तो 180 में से माइनस कर देंगे दोनों को, तो आपका एंगल ऑफ डिपार्चर आ जाएगी। अभी हम आगे कैलकुलेशन करते हैं तो फिर आपको पता चल जाएगा। सिमिलरली एंगल ऑफ अराइवल, ये भी वैलिड ओनली फॉर complex conjugate zeros, valid only for complex conjugate zeros। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? The angle of arrival is the angle at which the locus arrives at a zero in the n-th plane। तो लोकस जो है वो जिस एंगल से किसी पोल को लीव करता है वो एंगल ऑफ डिपार्चर है, और फिर वही लोकस, सारी बात है पोल ने जीरोस की तरफ क्लोज करना होता है, तो वो लोकस जब किसी जीरो पे अराइव करेंगे तो अराइविंग एंगल भी हमें पता होना चाहिए, तो वो एंगल ऑफ अराइवल होगा। तो पोल ही लीव करता है, पोल से ही लोकस लीव करता है, और अराइव भी वो लोकस ही कर रहा होता है। पोल ही, यानी पोल का ही एंगल ऑफ डिपार्चर होता है, और असल में पोल का ही एंगल ऑफ अराइवल होता है, लेकिन चूंकि वो अराइव जो है वो जीरो पे होता है, तो इसलिए हम इसको एंगल ऑफ अराइव को जीरो से, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जीरो से रिलेट कर देते हैं, बट एक्चुअली पोल ही डिपार्ट करता है एक खास जगह से, और अराइव भी वही कर रहा होता है, लेकिन वो अराइव चूंकि जीरो पे कर रहा होता है, इसलिए जीरो के लिहाज से इसकी डेफिनेशन हमने ये किया, द एंगल ऑफ अराइवल इज द एंगल एट विच द लोकस अराइव्स एट ए जीरो इन द एस। तो कुछ आप जब प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करेंगे रूट लोकस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम में तो जो है वो कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर की फॉर्म में हमारी जीरोस है ही नहीं, तो इसलिए एंगल ऑफ अराइवल की कैलकुलेशन नहीं होगी, लेकिन एंगल ऑफ डिपार्चर की होगी, क्योंकि हमारे पास दो पोल से एक -1 प्लस जे3 पे और एक -1 माइनस जे3 पे, तो इन दोनों का एंगल ऑफ डिपार्चर हम कैलकुलेट करेंगे। जीरो चूंकि रियल नंबर है तो उस केस में हम कोई एंगल ऑफ अराइवल फाइंड नहीं करेंगे, लेकिन अगर जीरोस भी कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर में हो तो आप उनका भी एंगल ऑफ अराइवल फाइंड करना पड़ेगा। फार्मूला सेम ही है, जस्ट पोल्स की जगह यहाँ पे आप जीरोस करते जाएंगे और जीरोस की जगह क्या करते जाएंगे, पोल्स।
सो लेट्स कैलकुलेट। हमने कैलकुलेट कर ली है फाई डी 1 माइनस एंगल फ्रॉम द रिमेनिंग पोल। ठीक है, देखना इसको माइनस अगर कॉमन ले लें यहाँ तो इधर भी माइनस बन जाएगा, तो माइनस इंटू अगर ओपन करेंगे यहाँ तो माइनस, और ये तो ये फार्मूला वही यही वाला बन जाता है, माइनस इंटू दिस और माइनस 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 प्लस ये वाला आ जाएगा आपके पास। अगर ये माइनस को ओपन करेंगे तो 180 तो आ जाएगा। अब एंगल फ्रॉम द रिमेनिंग पोल्स। अब इस पोल का हम एंगल ऑफ डिपार्चर फाइंड करेंगे। बी वेरी टेंटेटिव। इस पोल का हमने एंगल ऑफ डिपार्चर फाइंड करना है, तो इसको छोड़ देना आपने, इस पोल पे फिर आ जाना। अब ये पोल जो है, अगर इस पोल के रेफरेंस से इसका एंगल देखें तो ये बिल्कुल, ये जो पोल है, ये जो पोल है इस पोल के रेफरेंस से 90 के एंगल, कितने के एंगल पे, 90 के एंगल पे। तो आपने 90 यहाँ पे लिख दिया, और कोई पोल है नहीं है तो समेशन भी पोल की 90 ही होगी। माइनस जीरो का एंगल, जीरो एक यहाँ पे, जीरो का भी इस पोल के रेफरेंस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आपने एंगल नहीं करना है, इस तरह ये वाला एंगल वो आपने एंटी क्लॉकवाइज करना है। ठीक है, तो जिस तरह आपने ये एंगल निकाला है 90, यानी इस पोल के रेफरेंस से जो एंगल है वो कितना बनता है, ऊपर की तरफ हम मूव करेंगे क्योंकि ये जो है हमने उस पोल के रेफरेंस से मूव कर रहे हैं, ये एंगल 90 बनता है। अगर आपने इस पोल को अपनी कैलकुलेशन में कंसिडर करते तो आपने ऐसे फिर एंगल फाइंड करना था, और ये एंगल फिर -90 होना था, या 270 आप उसे कह सकते। तो यही है कि आप हमेशा एंगल जो है वो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइंड करने की कोशिश करें। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पोल है उसके रेफरेंस से बाकी पोल का भी एंगल जो है वो फाइंड करें, ताकि आपको एंगल के साथ प्लस माइनस की जो कॉम्प्लिकेशंस है उनसे आपका जो है वो कैलकुलेशन जो डिफिकल्ट होती हैं वो आपकी आसान हो जाएंगी। तो इसे जीरो के एंगल ये, अगर आपने कैलकुलेट करना है, अगर आपने ये वाला एंगल, तो इसका बड़ा आसान है, आपको पता है ये राइट ट्राइंगल बन जाती है, एंगल 90 है। ये यूनिट जो है 1 यूनिट है, ये 3 यूनिट है। उसी तरह आप क्या करेंगे, एंगल होगा जो थीटा जीरो का जो एंगल है, थीटा जीरो वन, एक ही जीरो है, थीटा जीरो वन विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स। तो आपको पता है टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स, तो वाई 3 है और एक्स 1 यूनिट है। ये एंगल 71 ही बनेगा, तो आप यहाँ पर रखेंगे, बाद में आप ये फार्मूला अप्लाई करें 160। तो ये जो पोल है ये विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉकवाइज, इस एंगल ऑफ डिपार्चर है वो 160 और प्लस होगा, और यहाँ पे जो इसका एंगल ऑफ डिपार्चर, ये पोल इस तरफ डिपार्च करेगा, ये पोल इस तरफ डिपार्च करेगा, तो ये एंगल -160। अब आप गौर करें कि ये पोल दोनों डिपार्ट कर गए यहाँ से। तो ये जो है इन्होंने क्लोज भी करने आप अपने आप को इस जीरो की तरफ, तो ये किसी ना किसी पॉइंट पे रियल एक्सिस पे एक यहाँ पे एक दूसरे मिलेंगे, मीट करेंगे, और फिर इस जीरो की तरफ ही क्लोज करेंगे। और आपको पता है जीरो एक ही है, पोल दो हैं, तो एक जो लाइन होगी रूट लोकस की वो एसिम्प्टोट की तरफ चली जाएगी। कंसेप्चुअली ये क्लियर हो रहा है यहाँ से कि ये जो है पोल यहाँ से डिपार्ट कर रहा है, ये पोल जो यहाँ से डिपार्ट कर रहा है, तो इन्होंने रूट लोकस आपको पता है जीरो की तरफ भी क्लोज करता है, तो ये यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कहीं पे किसी जगह पे मिलेंगे, और फिर एक सेगमेंट जो है वो इस जीरो की तरफ क्लोज हो जाए, जीरो की तरफ मूव करेगा। तो जाहिर बात है चूंकि पोल्स एंड जीरोस आर नॉट इक्वल, तो एक जो सेगमेंट होगा वो फिर जो हमारा एक एसिम्प्टोट है उसकी तरफ मूव कर देगा। तो इसको उसने किया भी है, देखें ये यहाँ पे दोनों एक खास पॉइंट पे मिल रहे हैं, वहाँ से उस पॉइंट को ब्रेक अवे पॉइंट कहते हैं, वहाँ से चूंकि ये ब्रेक अवे हो गया, एक सेगमेंट रूट लोग उसका इस तरफ आ गया, जीरो की तरफ ही क्लोज कर गया,
और दूसरा ये एसिम्प्टोट की तरफ चला गया, ये टुवर्ड जीरो की तरफ चला गया, और ये जो सेगमेंट है टुवर्ड कहाँ चला गया, एसिम्प्टोट, और ये ब्रेक अवे पॉइंट। तो हमें जो है वो ब्रेक अवे पॉइंट या डिफाइन करना होगा कि ये कहाँ किस पॉइंट पे जाके ये दोनों लोकस, दोनों पोल से जो लोकस डिपार्ट हुए थे किस पॉइंट पे आके मिले हैं और फिर ब्रेक अवे हो गए, वो हमें पता होना चाहिए पॉइंट। तो वो बड़ा इजी है, हम फाइंड करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम ब्रेक अवे पॉइंट की डेफिनेशन देखेंगे। द पॉइंट वेयर द लोकस लीव्स द रियल एक्सिस is called the breakaway point. The point where the locus return to the real axis is called the break in point. Sorry, यहाँ breakaway लिखा हुआ है। ब्रेक इन, ये पता होना चाहिए आपको। तो अभी हम आगे जो स्लाइड आ रही है उसमें क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप देखें कि ये जो पोल यहाँ से पार्ट हुआ है, ये ब्रेक अवे या ब्रेक इन पॉइंट पे जब इसके क्लिप आता है तो एक खास एंगल पे आके इसके इस पे ये जो एंगल है हमें पता होना चाहिए। यहाँ ये तो डिपार्टिंग एंगल था, और फिर ये जब रियल एक्सिस पे आके इसने मीट करना है, दोनों लोक से लोकी ने जो पोल से पार्ट हुए हैं, तो ये भी एक एंगल हमें पता होना चाहिए और ये एंगल भी पता होना चाहिए। तो उस एंगल का फार्मूला क्या है, द ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट द ब्रांचेस ऑफ द रूट लोकस, ये रूट लोकस की ब्रांचेस है ना, ये वाली फॉर्म एन एंगल ऑफ 180 divided by n degree with the real axis, where what is n, real axis का ये एंगल बनाते हैं, where n is the number of closed loop poles arriving at or departing from the single breakaway or breaking point। तो n क्या नंबर ऑफ पोल्स हैं जो जो यहाँ पे आके ब्रेक अवे पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, ठीक है, ये दो ही हैं। सो 180 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 90। तो ये जो यहाँ रफली बना हुआ है, एक्चुअली जो एंगल बनेगा, ये पोल इस तरह आएगा और बिल्कुल ऐसे यहाँ पे आके ऐसे बिल्कुल 90 के एंगल, ऐसे 90 का एंगल, ये भी इस तरह 90 का एंगल, और फिर इस तरह ये जो एंगल है ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा। तो ये हम पता लगा सकते हैं। इस केस में तो दो पोल्स थे और 180 डिवाइड बाई 2 किया तो 90 हो गया। अगर तीन पोल्स होते तो इस जगह पे तो फिर 180 डिवाइड बाई 3 60 होता है, तो ये इस तरह कोई 60 का एंगल में आ रहा होता है, ये भी 60, और तीसरा पोल यहाँ कहीं होता है तो वो भी एंगल 60 का बना रहा होता है इस पॉइंट पे। तो आप बड़ी इजीली फाइंड कर सकते हैं एट द ब्रेक इन और ब्रेक अवे पॉइंट रूट लोकस की जो ब्रांचेज हैं वो रियल पॉजिटिव रियल एक्सिस का जो एंगल बना रही हैं, वो बड़ा इजी है। वो किसके इक्वल है, 180 डिवाइड बाई n, where n is the number of poles from which the root locus has was departed and then it has arrived at the real axis। तो ये एक एग्जांपल है जिसमें हमने सिर्फ दिखाया हुआ है कि ब्रेक इन और ब्रेक पॉइंट आउट पॉइंट क्या होते हैं। ये ब्रेक इन पॉइंट है यहाँ, यानी वो पॉइंट जहाँ से जो आपका रूट लोकस है वो रियल एक्सिस को लीव करता है, वो ब्रेक वे पॉइंट होता है। वो पॉइंट ये वाला सिग्मा 2 वाला है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपके जो रूट लोकस हैं वो रियल एक्सिस पे आके मीट करते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब इसमें एक बात सिर्फ जो है वो देखनी पड़ेगी, वो मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, आई फॉरगॉट, लेकिन मैं चलो अब लिख देता हूँ कि जब भी रियल एक्सिस के ऊपर जो आपकी जीरोज हैं वो एक कंसेक्टिव पेयर की फॉर्म में होंगी या पोल कंसेक्टिव पेयर की फॉर्म में होंगे, जैसे इस केस में है आपके पास ये जो दो पोल जीरोज हैं कंसेक्टिव हैं, इसी तरह दो पोल्स हैं वो रियल एक्सिस कंसेक्टिव है।
तो ब्रेक अवे पॉइंट जो है वो कंसेक्टिव पोल्स के बिटवीन कहीं पे होता है और ब्रेक इन पॉइंट जो है वो कंसेक्टिव जीरोस के बिटवीन कहीं पे होता है। तो लिख देते हैं whenever there is a pair of consecutive zeros or poles on the real axis, then the break away point will lie in between the pole pair and the break in point will lie in between the zeros, in between the pair of real axis zeros. Then the break point will lie in between the pole pair. Consecutive pole pair लिख लेते हैं, ज़्यादा इजी हो जाता है. Consecutive pole pair and the break point will lie between the pair of consecutive real axis zeros. So this is another concept which you must remember. ये देखिए कंसेक्टिव पोल पे real axis पे तो इन दोनों के बीच कहीं पे ब्रेकिंग पॉइंट होगा, इन दोनों के बीच कहीं पे ब्रेक अवे पॉइंट हो. इनको कैलकुलेट करना भी हमें पता होना चाहिए कि ये ब्रेक इन और ब्रेक अवे पॉइंट कहाँ पे होंगे. लेकिन ये याद रखिए कि ये आपको कैलकुलेट इनको करना पड़ेगा, ठीक है. तो उसके लिए बड़ा इजी है. ब्रेक अवे या ब्रेक इन पॉइंट की कैलकुलेशन कैसे होती है. इस केस एग्जांपल में तो ब्रेक हमारे पास क्या नाम है, एंगल ऑफ डिपार्चर ही होगा. एंगल ऑफ अराइवल कोई नहीं, क्योंकि जो जीरोज हैं वो पेयर की फॉर्म में है ही नहीं. एक ही जीरो थी, कॉन्जुगेट पेयर भी नहीं है. लेकिन पोल जो थे वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर की फॉर्म में थे, तो हमारे पास एंगल ऑफ डिपार्चर आ गया. और वो जितने पोल्स हैं उनका एंगल जो है एक दूसरे के, जिसे कहते हैं हम अरिथमेटिक, आप उसे इनवर्स कह सकते हैं. रेसिप्रोकल, जिसमें अरिथमेटिक रेसिप्रोकल हम उसे कह सकते हैं. यानी अगर एंगल यहाँ पे 161 है, +161 है और इधर -161 होगा. तो ब्रेक अवे पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, करेक्टरिस्टिक क्या होती है कि जो आपका अपर लूप ट्रांसफर फंक्शन का डिनोमिनेटर है इसको 0 के इक्वल रख दें. नो, ओपन लूप नहीं, सॉरी, क्लोज लूप. जो आपका जो ट्रांसफर फंक्शन बनेगा उसका जो डिनोमिनेटर है उसको आपने 0 के इक्वल रखना है. तो ये बनेगा यूनिटी फीडबैक के लिए. एच एफ एस अगर यूनिटी है तो ये बने, इस फॉर्म में लिख देंगे. जनरल फॉर्म तो ये है. फीडबैक अगर आपने दिया हुआ है, अगर यूनिटी है तो यहाँ पे 1 एच एफ एस की जगह 1 लिख देते हैं. तो इस केस में फीडबैक यूनिटी हुई है. 1 + जी एफ एस की वैल्यू आपने ये पुट कर दी है और फिर यहाँ से के की वैल्यू निकाल ली और के को आपने डेरिवेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एस और उसको फिर इक्वल टू 0 रखा. तो फाइंड रूट है, तो इसका डेरिवेटिव ले लिया, इसको इक्वल टू 0 रख दिया. तो आपके पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. इसको आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लिया. तो एस की एक वैल्यू 1.16 आ गई और दूसरी एस की वैल्यू -5.16 आ गई. और +1.16 पे तो हमारा रूट लोकस की पोर्शन नहीं है, -5.16 है. तो ये हम जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे. तो आपके ये जो दोनों लोकी हैं, यानी
इन दोनों पोल से ये जो डिपार्ट हो गए रूट लोकस का सेगमेंट्स आ रहे हैं या ब्रांचेस आ रही हैं, वो माइनस इस जगह पे जाके इस पॉइंट पे जाके मिलेंगी आपस में। ठीक है, तो ये आपने जो है वो पॉइंट जो है वो फाइंड कर लिया, ब्रेक अवे पॉइंट। अब एक और सिर्फ कंसेप्ट रह गया कि समटाइम रूट लोकस ऐसा होता है कि वो जो है ये जो जे ओमेगा एक्सिस है, ये वाला इमेजिन एक्सिस, इसको भी कट करता है। ठीक है, तो वो जो क्रॉसिंग है, यानी लेट्स से मैं इस तरह कोई रूट लोकस जो है वो मैं ऐसे ही समझाने की खातिर ड्रॉ करता हूँ कि जो आपका रूट लोकस है वो इस पॉइंट से ऐसे मूव करता है और इधर कट कर देता है और इधर कट कर देता है। तो ये जो दो पॉइंट है जे ओमेगा एक्सिस है, क्योंकि ये आपका इमेजिनरी एक्सिस था, जे ओमेगा एक्सिस भी उसे कहते हैं, और ये आपका रियल एक्सिस सिग्मा एक्सिस भी आप उसे कहते हैं। तो ये जो जे ओमेगा क्रॉसिंग है ये आपने फाइंड करनी है। उसका इस केस में तो वो आप जैसे देख ही रहे हैं, रूट लोकस कहीं भी इस इमेजिनरी एक्सिस को कट नहीं करता, तो फाइंड करना मीनिंगलेस है, एग्जिस्ट नहीं करती क्रॉसिंग्स। तो आपको लेकिन मेथड पता होना चाहिए, वो मेथड क्या है, उसके दो तीन स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि क्लोज लूप जो आपका ट्रांसफर फंक्शन है उसकी आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन आपने फाइंड कर लेनी है। इसमें ध्यान में रखिए कि आपने ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो नहीं करनी, क्लोज लूप जो है ट्रांसफर फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक को आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को डेफिनेशन ही उसकी ये होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को कि वो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की डिनोमिनेटर को इक्वल टू जीरो रखें, उसे हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ भी क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जीरो रखा हुआ है और इधर भी जीरो के इक्वल रखा है। ठीक है, उस इक्वेशन आगे जब आपकी तो सिंपल उस पर स्टेबिलिटी क्राइटेरिया के लिए जब आप रूट हॉर्विट टेबल बनाते हैं तो वो बनाएंगे। एंड फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट कॉलम फाइंड द मार्जिनल वैल्यू ऑफ के। जाहिर बात है के उसमें जो है वो जब आप टेबल बनाएंगे तो के उसमें आ रहा होगा, तो लेफ्ट मोस्ट कॉलम में भी के आ रहा होगा। तो आपका जो सिस्टम है वो के की कुछ वैल्यू की रेंज के लिए जो है मार्जिन स्टेबल होगा। मार्जिन स्टेबल मतलब होता है कि सारे जो रूट्स हैं वो जे ओमेगा का एक्सिस के ऊपर आ जाए। तो इसका मतलब क्या होता है, मार्जिनल वैल्यू ऑफ के निकालेंगे, मतलब ये है व्हिच मींस वी हैव टू फाइंड दैट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच ऑल एंट्रीज ऑफ एनी रो ऑफ द रोथ ऑर्बिट टेबल बिकम जीरो। ठीक है, तो वो आप आपने जो है रोथ ऑर्बिट टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया, उसका लेफ्ट मोस्ट कॉलम जो है उसमें के की वैल्यूज आ रही होंगी, के की फॉर्म में वैल्यूज होंगी। तो आपने हर रो में जिस जिस रो में के आ रहा होगा पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के की एक ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करनी है जिसके लिए वो सारी रो जो है साउथ हार्वर्ड टेबल की वो जीरो हो जाए। जब वो जीरो हो जाएगा तो आपको पता है जिस जगह पे वो जो रो जीरो होती है उससे ऊपर वाली इक्वेशन को हम कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन जो आएगी आगे उसकी आपने जो रूट्स फाइंड कर लेनी है, वो जो रूट्स होंगे वो आपकी जे ओमेगा क्रॉसिंग। So significance of k मैंने again लिख दिया, बार बार आ रहा है। We have to select such value of gain k for which the root locus remains in the left half plane of the S plane। तो आपको पता है k जो है वो गेन है, तो उसकी वैल्यू आपने इतनी लेनी है कि वो लेफ्ट हाफ जो आपका लोकस है वो लेफ्ट हाफ में ही रहे, और पोज बल्कि आपके सारे लेफ्ट हाफ में रहें, एस प्लेन के लेफ्ट हाफ में रहें, क्योंकि अगर राइट हाफ में वो चले जाएं तो आपका सिस्टम स्टेबल नहीं रहता। और आप ये कर सकते हैं गेन को चेंज, क्योंकि गेन को चेंज करने से आप जो आपका सिस्टम के पोज एंड लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। तो इट इज नाउ इन योर कंट्रोल टू मेक ए सिस्टम स्टेबल और अनस्टेबल, because by changing the value of k you can change the
लोकेशन ऑफ रूट्स एंड रूट्स आर पोल्स। अगर वो राइट प्लेन में आ भी रहे हैं फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ के, तो आप के की वैल्यू चेंज करें, उन्हें लेफ्ट प्लेन पे आप ले आए। So it means there is always a range of k for which the system is stable, and out of that range the system is unstable. तो उस रेंज में सिस्टम फुली स्टेबल भी हो सकता है, मार्जिनली स्टेबल भी हो सकता है। तो जब सारे रूट्स जो हैं वो जेमैग एक्सिस में, तो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होता है। तो वही हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि वो क्रॉसिंग फाइंड करना चाह रहे हैं। तो वेरी इजी। सो इट इज़ नाउ इन योर हैंड्स कि आप के की एक ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करें जिसके लिए जो है सिस्टम मार्जिनली स्टेबल हो जाए, क्योंकि कि उस रेंज के बाद जो होगा वो सिस्टम अनस्टेबल होगा। सो एग्जांपल आपने 1.8.1 से 8.7 करनी है टू ग्रैस्प द फुल कंसेप्ट ऑफ द रूट लोकस। लेकिन अभी जो है वो मुझे मेगा क्रॉसिंग फाइंड करनी बुक की एक एग्जांपल से आपको करवाऊंगा और फिर लेक्चर एंड हो जाएगा। सो दिस इज एन एग्जांपल जिसमें वो रूट लोकस की जे मेगा क्रॉसिंग जो है वो फाइंड करना सिखाता है। तो ये आपके पास क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है। वो कहता है कि फॉर द सिस्टम ऑफ फिगर 8.11, ठीक है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी एंड गेन के फॉर विच द रूट लोकस क्रॉसेस द इमेजिनरी एक्सिस और व्हाट वैल्यू ऑफ के इज द सिस्टम स्टेबल। तो काफ़ी चीज़ें इसमें आ रही हैं। तो सबसे पहले ये आपने ट्रांसफर फंक्शन फिगर 8.11 क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकाल लिया। तो लेट्स से व्हाट इज फिगर 8.11, 8.14, 8.13, 112 है, ये गिवन है, ये सिस्टम गिवन है। ये भी जब आपने यूनिटी फीडबैक को सॉल्व किया तो जाहिर बात है जो आपके पास फंक्शन बनेगा वो ये वाला बन जाएगा। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। इस इससे आपने रूट हार्वर्ड टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। तो पहली रो क्या बन जाएगी रूट हार्वर्ड टेबल की, 1, 14 एंड 3। तो बना दी है 1, 14 एंड 3 के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो लिख दिए सारे। और इधर डिग्री हमारी क्या है, S4 है, तो S4 S3 S2 S1 S0 तक जाएगा टेबल। और पहली रो क्या बन जाएगी 1, 4, 3, एक एंट्री छोड़ के आपने कोएफिशिएंट को लिखना होता है। दूसरी क्या बनेगी 7, 8 प्लस के एंड 0, ठीक है। जो नहीं एंट्री लिखी हुई वहाँ 0 है। तो बाकी है रोज आपने खुद बनानी है। तो ये एंट्री कहाँ से आएगी, जाहिर बात सिंपल, इसका फार्मूला क्या होता है, डिटर्मिनेंट लेते हैं आप इन दोनों का, इन पहले कॉलम इस कॉलम को और इसको मिला के आपने डिटर्मिनेंट लेना है और इस एंट्री से जो आपने -1 के साथ डिवाइड कर। तो डिटर्मिनेंट खोलें तो 8 प्लस के -98 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा के -90। उसको जब आप -1 से डिवाइड करेंगे तो 90 माइनस के बन जाएगा। सिमिलर ये 21 के कैसे है, इस कॉलम के साथ इस कॉलम को मिला, यानी 173 के एंड 0 का डिटर्मिनेंट वो हो जाएगा 0 इंटू 1 0 -21 के डिवाइड, जब उसको -21 को -1 से करें तो +21 के, और आगे तो 0 ही आ जाएगा सारी बात। सिमिलरली थर्ड रो उसकी एंट्री कैसे बनी, सिमिलरली वो ये 790 माइनस के 8 प्लस के 21 के का डिटर्मिनेंट बनेगा और उसको डिवाइड करेंगे आप माइनस क्या उसे कहते हैं, तो ये बन जाएगा 21 के माइनस, आपने सॉल्व किया इस तरफ डिटर्मिनेंट निकाल लिया मल्टीप्लाई करके, तो ये एंट्री भी आपके पास आ गई। इधर बाकी 0 आ जाएंगी और फिर जो है वो आप लास्ट एंट्री ये वाली भी निकाल सकते, उसके लिए ये एक ये कॉलम बन जाएगा और एक ये कॉलम बन जाएंगे और डिटर्मिनेंट आप ले लेंगे और वैल्यूज फाइंड करेंगे।
तो ये आपकी रोज हार्बर टेबल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, यानी आपने क्लोज लूप ट्रांसफॉर्मेशन से रोज हार्बर टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लेना उसके डिटरमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। अब इसमें हर जगह पे लेफ्ट मोस्ट कॉलम में 3 जगह पे के आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू के सिलेक्ट करनी है और रो पूरी 0 करनी है। सो लेट्स से इसमें अगर आप पॉजिटिव वैल्यू सिलेक्ट करते हैं, इसमें अगर आप पॉजिटिव 10 लेते हैं तो ये रो कभी भी 0 नहीं होगी, 90 माइनस 10 80 हो जाएगा और ये 2 10 हो जाएगा, कोई एंट्री 0 नहीं हुई। पॉजिटिव 100 लेते हैं तो ये माइनस माइनस में चला जाएगा, ये तो किसी सूरत ये दोनों एंट्रीज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के के लिए 0, ये तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ के लिए भी 0 नहीं होती। तो आपको इस रो को देखना पड़ेगा या इस रो को देखना पड़ेगा। तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के की इस केस में सिर्फ ये के 0 के लिए 0 होती है, ये वाली रो जो है वो के 0 के लिए 0 होती है, अदरवाइज नहीं होती कोई एंट्री। ये दो एंट्री तो 0 है इसकी, लेकिन ये एंट्री 0 अगर करनी है तो के को 0 रखना पड़ेगा, वो नहीं है हमने करना, 0 नहीं रखना, पॉजिटिव वैल्यू 0 से ज्यादा होनी चाहिए। सो इट मीन्स सिर्फ यही हमारे पास जो एंट्री है, बाकी दो तो इसमें भी 0 है। ये वाली एंट्री जो है वो और सम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के, ये एंट्री 0 हो सकती है। तो इस सारी इक्वेशन को हमने 0 के इक्वल रख दिया सारी। तो जो माइनस के स्केयर माइनस 65 प्लस 720 और 90 माइनस के को आपने 0 के इक्वल रख दिया। जब आप 0 के इक्वल रखेंगे और सॉल्व फॉर के करेंगे तो के की एक खास वैल्यू निकल आएगी जहाँ पे ये सारी एंट्री जो है वो 0 हो जाएगी। इस केस में तो कभी भी आपने के की पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये सारी रो 0 के अलावा कोई पॉजिटिव वैल्यू होती है कभी भी 0 नहीं हो सकती, लेकिन ये स्टिल हो सकती है 0 के की किसी खास वैल्यू के लिए। तो इट मीन ये वो इक्वेशन है, ये वो रो है जिसकी सारी एंट्रीज को 0 बनाया जा सकता है। तो इसके ऊपर वाली जो रो है उसे हम उससे जो इक्वेशन बनेगी उसे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन बना ली 90 माइनस के एस स्क्वायर हो जाएगा प्लस 21 के ही रहेगा, इसके सारा एस नहीं लगाना क्योंकि एक एंट्री छोड़ के होता है, तो एस नॉट आएगा इसके पास और वो एस नॉट 1 नहीं होता। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई, इसको थोड़ा मजीद सिंप्लीफाई किया तो ये बन गई। तो वो जो इस एंट्री को जब आपने के को इस ये जो एंट्री है इसको 0 के इक्वल रखा था, 0 के इक्वल रखा हुआ है यहाँ पे, तो के की एक खास वैल्यू आ गई 9.65। तो 9.65 पे ये जो पूरी रो जो है वो 0 हो जाती है और उससे ऊपर वाली फिर इक्वेशन को ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन ये बनी हुई है, इसमें के को हमने 9.65 रखा हुआ है। वो इसलिए रखा हुआ है कि हमने मार्जिनल स्टेबिलिटी जो है वो अचीव करनी है, ठीक है। और वो के की वैल्यू 9.65 इस एंट्री को 0 के इक्वल रखने के बाद आई थी, ठीक है। तो 90 माइनस 9.65 तो वो आपके पास 80.35 स्क्वायर हो जाएगा। 21 में 9.65 रखेंगे, 21 के में तो 202.7 हो जाएगा। तो ये अब आपके पास एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन गई है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एस की दो वैल्यू आ गई हैं और उनकी शेप आप देखें उसमें ऐसी दो वैल्यूज आई हैं जिनमें सिर्फ इमेजिनरी जो है वो आपके पास पार्ट है, रियल 0 है। तो जे एस तो इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर ये जो है जे प्लस J1.5 के ऊपर और माइनस J1.5 के ऊपर जो आपका लोकस है वो कट करेगा और आपके पास जे ओमेगा एक्सिस जे ओमेगा क्रॉसिंग आ जाएंगे, ठीक है।